चंद्र की जय आई गौरंग की जय जय नाग की जय। ठीक है, तो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस फ्रॉम द बुक बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। अभी हमने 2 चैप्टर स्टडी किया है। विल गो टू द चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 इज कॉल्ड, रेणुका जी, चैप्टर 3 का नाम क्या है? प्रभु जी, last session's recording, if you can, I missed No that. problem. I forgot the time actually. I should- And will- so today, Rahul had reminded me, okay. and I consciously remembered also, yes, No that problem. I have a session. Last week we have recording. I will send you. Will share. Thank you, Prabhuji. So, Liberation from Material Planets is the 3rd chapter, which we are going to do today. You start reading. Okay. So, the Jnanis and Yogis are generally impersonalists, and although they attain the temporary form of liberation by merging into the impersonal effluence, the spiritual sky, according to Srimad Bhagavatam, their knowledge is not considered pure. By penances, austerities, and meditations, they can rise up to the platform of the Supreme Absolute, but as has been explained, they again fall down to the material world because they have not taken Krishna's personal features seriously. Unless one worships the lotus feet of Krishna, he again has to descend to the material platform. The ideal attitude should be, I am your eternal servitor. Please let me somehow engage in your service. Krishna is called Ajita, the unconquerable, for no one can conquer God, but according to Srimad Bhagavatam, one with this attitude easily conquers the Supreme. Srimad Bhagavatam also recommends that we give up this futile process to measure the Supreme. We cannot even measure the limitations of space. What to speak of the Supreme? It is not possible to measure the length and breadth of Krishna. By one's minuscule knowledge, and one who arrives at this conclusion is considered intelligent by Vedic literature. One should come to understand submissively that he is a very insignificant segment of the universe, and abandoning the endeavor to understand the Supreme by limited knowledge or mental speculation, we should become submissive and hear of the Supreme through the authoritative sources such as Bhagavad Gita or through the lips of a realized soul. In Okay, Bhagavad enough. Okay, so let us quickly recap what we have studied in the previous 2 chapters with few questions. Okay. So, okay. So, you're ready with the questions, all of you? It'll be simple questions. Don't be in anxiety. शिवा, आप नहीं दिख रहे हो? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बंद कर दिया, वो वॉइस ब्रेक हो जाता फिर। ठीक है, आप अभी सुन रहे हो ना अच्छे से? हाँ जी, आवाज हाँ। ठीक है, चलिए। तो we are having the presence of your sound. Okay. चलिए, तो शिवा के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाई सोल कैनॉट बी सीन? आत्मा जो है क्यों दिखता नहीं? हमारे मेटेरियल आइज को क्यों दिखता नहीं? शिवा, हाँ जी प्रभु। आत्मा जो है ना, वो हमारे भौतिक जो इंद्रिय आंखें हैं, मेटेरियल आइज को दिखते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बहुत बेसिकली वो है, एक मटेरियल नहीं, एटम स्मॉल पार्टिकल्स है, तो हम नॉर्मल आइज से उनको नहीं देख सकते। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। It's energy of Krishna, very good, but it is so minute that our material eyes cannot see. यस है ना? तो गीता में भगवान बोलते हैं, I'm giving you, yeah, Renuka ji, you want to answer? Why Atma cannot be seen? जैसे सूक्ष्म शरीर होता है, we can't see that body.
Similarly, soul is also, it is as small, even smaller than an ant, absolutely a very small particle. So I don't think there's any machine also which is invented by any scientist who can even see the soul. Otherwise, they would have invented by now. So so that is, and he's, of course, it's part of Krishna's energy also, and that's the reason we cannot see, and we can feel the soul because it is. A body, a material body is alive only because of the presence of that soul. We can feel it and we can see it. That the minute the soul is out of the body is not responding anymore. It's at rest, and that's when one understands, and the heart stops beating. So one understands that the life is out now. The consciousness is not there anymore. So that is how we sense in the material world about the soul, but no one has seen the soul so far. Yeah, we can see the soul by its symptoms. Yes, only with the death symptoms, as we are saying that it is mentioned in the. Not only that symptoms. अभी soul है, कैसे पता चलेगा? How do you know? The consciousness of the body. Consciousness, very simple. तो very nicely शिवा told, शिवा ने क्या बोला है कि एनर्जी भगवान का एनर्जी है. एनर्जी कैन बी परसीव्ड बाय इट्स सिम्टम्स. उसका कुछ लक्षण होते हैं समझने का, है ना. सो इन दैट वे सोल इज वेरी एटॉमिक इन साइज. मैंने प्रभुपाद जी बोलते हैं ना डिस्कशन, इट इज सो स्मॉल, इट इज, उसका साइज क्या है? एटॉमिक का एक गात्र बताते हैं भगवत गीता में. अभी हमारे बाल के जो है आगे वाला 10,000 part. हाँ 10,000 पार्ट, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर ना. केशाग्र, हमारे केश का जो है अग्र जो है उसको 10,000 पार्ट हमें उसको डिवाइड कर दिया. तो एक पार्ट जो है वो, यानी कि मेटेरियल सेंसेस, भौतिक इंद्रियों से हम भगवान आत्मा को नहीं देख सकते. यहां तक कि हमारा मन बुद्धि अहंकार भी नहीं दिखता है ना. तो आत्मा उससे और सूक्ष्म है, कैसे दिखेगा? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन टू रिचा जी. हाँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये 2 चैप्टर में कहीं से भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है? आप तैयार हो ना? तो निराकारवादी जब उनका शरीर त्यागने का समय में वो क्या सोचते हैं? निराकारवादी जो है इम्पर्सनलिस्ट, शरीर त्यागने के समय में क्या सोचते हैं? वो निराकारवादी सोचते हैं कि इस भौतिक जीवन के, मतलब इस भौतिक जीवन का यही अंत है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है, मतलब. और कृष्ण भावनामृत जो होते हैं उनको मतलब इस जीवन के बाद भी. मैंने क्वेश्चन में भी आंसर है, क्वेश्चन में आंसर है मेरा क्वेश्चन में. निराकारवादी सोचते हैं अंत में भगवान निराकार है. निराकार है. बस. तो उनका जो अंतिम गति क्या है? वो वास्तव में ब्रह्म ज्योति में लीन होने का उनका कोशिश है. उनको ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है? तो निराकारवादी ब्राह्मण, यानी कि निराकार ब्राह्मण, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं. वो सोचते हैं कि वही अंत है, वही अंत है, वही परम सत्य है, वही भगवान है. इस तरीके से वो भगवान, वो परम निराकार तत्व में लीन हो जाते हैं. कैसे लीन हो जाते हैं? एक तरीके से ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम बस यही मेरा जीवन है, ऐसे सोचते हैं. वो एक स्पिरिट सोल है ना, वो चिंगाड़ी बनकर रहते हैं, आत्मा का चिंगाड़ी बनकर रहते हैं, बस एक्टिविटी नहीं है. तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर में? ऐसा सिचुएशन, ऐसा जो पोजीशन है निराकार वादी का, वो एक्चुअली स्टेबल नहीं है. क्योंकि जब आप निराकार, यानी कि प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं ना, आसमान में आप जब जा रहे हैं फ्लाइट में, कितना देर तक आसमान में आप चलते रहेंगे इसे फ्लाइट में? कहीं पे आपको रुकना पड़ेगा नीचे आके, है ना. तो निराकारवादी यानी कि वहां पे कुछ
एक्टिविटी नहीं है, आप अकेले हैं, आपको एक्टिविटी चाहिए, तो इसलिए आप फिर से आपको धरती पर आना पड़ेगा। तो ये निराकारवादी का जो अंतिम जो लक्ष्य है वो स्थिर नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल, दे हैव टू कम डाउन। सो एक्चुअली भक्त का जो स्थिति क्या है, वो भगवत धाम जाते हैं जहाँ पे भगवान के साथ अलग अलग तरीके के एक्टिविटी सेवा में लग जाते हैं। आत्मा का लक्षण क्या है, हमेशा एक्टिव रहना। तो एक्टिविटी नहीं है आत्मा को, तो वो इट कैन नॉट बी स्टेइंग इन द इनएक्टिव सिचुएशन। इसलिए निराकारवादी, जिनको मायावादी बोलते हैं, वो फिर से मेटेरियल स्टेटस में आ जाते हैं और अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, वो सारे समाज कार्य में लग जाते हैं। प्रभुपाद जी ने ये बात बताया, याद है ना, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ठीक है विनायक, आपका क्वेश्चन। मृत्यु हमारा जीवन का फाइनल एग्जामिनेशन है, व्हाई एंड हाउ? Death is the final examination in our life. Why and how? Because Prabhuji, there are two types of world. Material world, we are out of the material world, where we are out of the cycle of birth and death. That is the spiritual world. And वो spiritual world में कोई birth and death नहीं होती है. The birth and death only happens in the material world. तो once जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम उस साइकिल से बाहर, बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर आ जाते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन सिंपल है। मृत्यु क्या होता है बताइए? यदि हम मतलब जीवन के अंतिम समय में कृष्ण का या मतलब भगवान का ध्यान कर, मतलब जो हम सोचते हैं उसी में हमारी मृत्यु होती है, तो हम वैकुंठ धाम, भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। और यदि हम वही मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ही लगे रहेंगे तो हम वही जन्म, व्याधि, मृत्यु, इस चक्कर में घूमते रहेंगे। ठीक है, मृत्यु क्या होता है बताइए, डिफाइन डेथ का जो है, मुझे उसको समझाइए। डेथ क्या होता है, मृत्यु क्या होता है? हमारी शरीर से आत्मा का अलग होना। हाँ, जब शरीर जो है यूजलेस हो जाता है, कि जब शरीर किसी काम का नहीं होता है, तो शरीर का जो इस जीवन का अवधि कम हो गया, तो आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेता है, इसको बोलते हैं डेथ, है ना। ये शरीर छोड़ने को बोलते हैं डेथ, और दूसरा शरीर लेने को क्या बोलते हैं? बर्थ। इस तरीके से हम जन्म मृत्यु का चक्कर में बंधे हुए हैं। और इस जीवन में डेथ जो है, हमारा मृत्यु जो है, वो इस जीवन के लिए एग्जामिनेशन है। क्यों? क्योंकि वो हमारा डेथ डिसाइड करता है कि हम कहाँ पे जाएंगे एंड हमने जीवन में क्या काम किया है। अगर हमने भगवान की भक्ति की है और हम बिल्कुल भगवान की सेवा में लीन रहे हैं, तो हम शायद वैकुंठ धाम जा पाए भगवान के पास, भगवान की सेवा में। करेक्ट। तो बेसिकली डेथ है ना, हमें फाइनली हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है वो डिसाइड करते हैं, है ना। तो इफ जैसे ऋचा जी ने बताया, डेथ यानी कि मृत्यु के समय में हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, जो हमारा वास्तव जो है एक्चुअल सिचुएशन है। और भगवान का स्मरण नहीं आएगा तो जिस तरीके का आपका विचार है, मन का जो है विचार है, उस तरह का शरीर आपको अवश्य मिलेगा, भगवान बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बंगाली एक कहावत बताया ना, भजन कर साधन कर मृत्यु जान ले है। जो आप भजन साधन करते हैं, मृत्यु के टाइम में आपको आपने कितना भजन किया, कितना साधन किया, पता चल जाएगा। हाँ, हमने पूरा जीवन भर भक्ति किया, तो आपके मृत्यु समय में भगवान का स्मरण नहीं आया, तो आपको भजन साधन का क्या फायदा हुआ? ये पॉइंट है। तो एग्जामिनेशन क्यों है? क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट लाइफ क्या है वो डिसाइड करने वाला है। जैसे एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को वो नेक्स्ट क्लास जाएगा नहीं जाएगा डिसाइड करने वाला है ना। तो हम इस भौतिक संसार में ही रहेंगे अलग शरीर लेके,
और इस भौतिक संसार से बाहर निकल के आध्यात्मिक लोग जाएंगे, डिसाइड एट द पॉइंट ऑफ डेथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, गुड। यही जो हम इस बात को हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग योगी, अलग अलग आध्यात्मिकवादी, अलग अलग स्पिरिचुअलिस्ट जो है, उनका डेस्टिनेशन अलग अलग होता है। व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ऑफ अस? रेणुका जी, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना है भगवत गीता के अनुसार? वैकुंठ धाम। भगवत गीता के अनुसार हम कृष्ण का ही पाठ है और हमें जाना वही है। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो हम आते हैं यही सोच के कि हम कृष्ण के ही रास्ते पे रहेंगे, लेकिन हम माया के जाल में फंस के हम डिविएट हो जाते हैं। फिर हम आप जैसे लोगों से संपर्क करके फिर वापस कृष्ण के रास्ते पे आते हैं आते हैं। ताकि हम वैकुंठ धाम जा सके। एंड यही रास्ता है एज पर गीता कि आप भूलो मत कि आप कृष्ण का ही पार्ट हो, उन्हीं की एनर्जी है और जाना वही है। तो आप इस माया के बंधन से निकलिए ताकि आपका जाने आने का ये आवागमन जो है खत्म हो। हम आना जाना नहीं है, यहीं पे भटक रहे हैं। भौतिक संसार में भटक रहे हैं, कभी आगे कब आए पता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा बद्ध स्थिति कब हुआ पता नहीं, इसलिए नित्य बद्ध बोलते हैं, यानी कि एवर कंडीशन। वी आर एवर कंडीशनड एंड व्हेन इट स्टार्टेड वी डोंट नो। कब गिरे पता नहीं, गिरे तो हैं। तो गिर के इधर भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकल के भगवत धाम वापस जाना। I would like to share something, on I think it was Friday. Friday, someone sent me an invitation for ISKCON. There was some at Clio County, which is in Noida, and someone had sent an invitation. So I don't know the name of that Prabhuji who had come. So there was one hour lecture he had given. So he was talking based on Garuda Puran. So I also didn't know that my son was there. And my daughter doesn't understand, but son takes a lot of interest into these talk. So he was saying that कि एक बिच्छू काटता है तो बिच्छू काटने का जो दर्द होता है ना, मतलब जब हमारी मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण के हिसाब से 42,000 बिच्छू जो काटता है वो दर्द शरीर में होता है। और वो शरीर को हम इतनी आराम वाली जिंदगी देते हैं। तो he was saying he had gone to Badrinath and Haridwar, and he saw that in January month in that freezing cold, साधक जो है कमर तक पानी में खड़े होके वो 3:30 बजे साधना कर रहे हैं। तो ही वॉज सेइंग कि यही शरीर को हम जो है इतना आराम देते हैं और जब वो मौत आएगी तो वो दर्द सहना पड़ेगा। देखिए, तो ये बात है। इसलिए इस शरीर में जितना हम तपस्या कर पाएंगे भगवत सेवा के लिए अच्छी बात है। ज्यादा तपस्या प्रभुपाद जी नहीं बोलते हैं, सुबह तो जल्दी उठना है और भगवान का नाम जप करना है, और भगवत गीता को और प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना है और जीवन में कुछ सरल नियम अनुसरण करना है। बस इतना ही तपस्या प्रभुपाद जी चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तपस्या है हर दिन जप करना, वेरी इंपॉर्टेंट। How to Prabhuji get into a disciplined japa in the morning time? Evening always it becomes you become tired sometimes and you can't do 16 rounds and you end up doing 8. This is how it happens. So early morning. मॉर्निंग है ना आपका टाइम। जनरली वी डू जपा ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त टाइम। ब्रह्म मुहूर्त इज 1.5 hours बिफोर सनराइज। Sunrise, yes. So that सनराइज 6 बजे है तो 1.5 hours यानी कि 4:30 बजे जो है आपको रेडी रहना है जप करने के लिए, तभी वो आपका टाइम है। bath, is it after bath? Better after bath is better. If you're not able to, fine, okay. But principle is do japa. At least wash your face, mouth and sit for japa. ठीक है, आपको बात टाइम लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, wash at least little, you cleanse your mouth and everything and sit for japa. Taking bath is good because बात करना यानी कि आपको आधा घंटा 45 मिनट जल्दी उठना पड़ेगा, है ना? ये बात है। तो 1.5 hours बिफोर सनराइज वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम। एंड उस समय में जो कुछ हम जप करेंगे, जो कुछ गीता का अध्ययन करेंगे, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव।
इट इज मच मोर इफेक्टिव देन अदर टाइम्स, बिकॉज दैट इज योर टाइम। क्योंकि उस टाइम में ज्यादातर लोग सोते रहते हैं, है ना। लोग उठते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, तब तक आपका जब हो गया। So, then there's another theory doing the rounds now. How true, I don't know, that is the time people are sleeping. So very few people are awake, and that is the time when you pray and ask for something. Then it's likely that your prayers are heard, because then Krishna has very few people to attend to. Not like that. See, prayers are heard anytime. ठीक है, प्रेयर्स कभी भी भगवान सुन लेते हैं। आपका जो माइंड है ना, वो स्टेबल नहीं है। आपका माइंड स्टेबल होने के लिए उस टाइम, वो टाइम ठीक है आपके लिए, आपके लिए वो टाइम है। भगवान के लिए 24 आवर एनी टाइम ही इज रेडी टू गिव ब्लेसिंग। क्या आप रेडी नहीं है ना रिसीव करने के लिए? आपका दूसरा टाइम में पूरा इतना जोर से घूमता रहता है सिर कि भगवान दे रहे हैं आपको, आप नहीं ले रहे। यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू रिसीव द मर्सी ऑफ कृष्णा अदर टाइम्स, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। सो we'll keep discussing like this with every session, some questions and answers with regard to the previous this one. I think I'm happy that all of you have answered the questions. तो आज का जो चैप्टर है, हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दूसरा कुछ भी स्पिरिचुअल पाथ में अलग अलग लेवल तक हम जाएंगे, यहां तक कि ब्रह्मलोक भी जाएंगे, तो वहां पे भी हमारा जो है जन्म मृत्यु का चक्कर से हम बच नहीं पाएंगे। तो हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ओनली। तो किस तरीके से इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में प्रभुपाद जी हमें इस चैप्टर में बताने वाले हैं। तो ज्ञानी योगी जो है, ज्ञानी योगी, ये 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है। सो भौतिक संसार में किसी भी जगह पे जाएंगे ऊपर, यानी कि कुछ तपस्या करके, कुछ यज्ञ करके, हवन करके, कुछ वैदिक विधानों का अनुसरण करके इस भौतिक संसार में स्वर्ग लोग जाएंगे, ब्रह्म लोग जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो वहां का जो जीवन है, इट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। फिर से आपको जन्म मृत्यु का चक्कर में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ये जो ज्ञानी योगी का जो परफेक्शन है, वो जो सोचते हैं परफेक्शन है, वो एक्चुअली इट इज नॉट परमानेंट भागवतम के हिसाब से। क्योंकि वो भक्ति के लेवल तक नहीं आए हुए, दे आर नॉट कम टू दी हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ भक्ति, राइट। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, ज्ञानी के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है। इम्पर्सनल ब्रह्मन, यानी कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना, जैसे अभी अभी हमने समझाया जस्ट विद एग्जांपल, वो अनस्टेबल सिचुएशन है, वहां पे एक्टिविटी नहीं है, तो फिर से वो नीचे पतंती, यानी कि वो नीचे गिर जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। और योगी जो है अलग अलग ग्रहलोक में जाने का जो कोशिश करते हैं, वहां पे कुछ समय तक वहां की जो सुविधाओं का आनंद लेंगे, फिर से उनका पुण्य क्षीण होने पर फिर से नीचे गिरना पड़ता है। इस तरीके से उनका आगे जाना आना, आगे जाना आना ऐसे होता रहता है। तो प्रभुपाद इज टेलिंग, unless one worship the lotus feet of Krishna, one has to again descend to the material platform. जब तक हम भगवान का सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक
इसी भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और ये कृष्णा गीता में ही हमें बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान वास्तव में जो है उन्हें जीतना उतना आसान नहीं है, यानी कि उनका उनका आश्रय में आना उतना आसान नहीं है। उनको अजीता बोलते हैं। अजीता यानी कि जो अनकॉन्करेबल, इजीली उनको जीत नहीं पाएंगे। परंतु जब हम भगवत भक्ति में रहेंगे हमेशा, तो भगवान विल बिकम परचेस्ड बाय द डिवोटी। भगवान उनके प्रति जो है, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं। भक्त वत्सल यानी कि ही इज वेरी अफेक्शनेट टू डिवोटीज। भक्तों के प्रति बहुत प्रेम भावना रखते हैं, अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे अर्जुन के लिए भगवान सारथी का उन्होंने एक पात्र निभाया। लॉर्ड इज कंट्रोलर, भगवान तो सबका कंट्रोलर हैं, फिर भी उन्होंने एक सारथी का रोल निभाया। क्यों? बिकॉज दैट इज लॉर्ड्स भक्तवत्सला जो है उनका गुण है। जो अजित गुण, जो अजित भगवान जो है वो जित हो जाते हैं भगवान भक्त के भक्ति के प्रति। तो भगवान का जो कृपा पात्र होना है, तो उनका भक्ति ही, भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं और कोई दूसरा चीज से आकर्षित नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि ज्ञान से, अलग अलग तपस्या से, दूसरा दूसरा कोई विधि विधान से आप भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, जितना भक्ति में कर पाएंगे। भक्ति ही भगवान को संतुष्ट करेगा, और भक्ति ही जो है हमें बहुत सारी चीजें, दूसरों भगवान का ज्ञान, भगवान का पर में जो वैराग्य, सब कुछ भक्ति ही देगा हमको। बाकी सब चीजें अलग अलग से करके हम भगवान को प्राप्त करेंगे, नहीं, वो संभव नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इधर। केवल भक्ति ही भक्ति, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति ही एक मार्ग है जो भगवान को हम इस मार्ग से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा मार्ग में नहीं जान सकते हैं। जो ज्ञानी है वो क्या सोच रहे हैं? भगवान का एक और स्वरूप, निराकार तत्व जो ब्रह्म ज्योति, वो अंत है। योगी सोचते हैं भगवान का जो परमात्मा रूप अंतिम है। ये सब भगवान का अलग अलग स्वरूप है। भगवान का वास्तव स्वरूप, उनका व्यक्तिगत रूप, भगवान कृष्ण का रूप जो गोलोक वृंदावन में वो है। तो ये सभी ज्ञान हमें तभी पता चलेगा जब हम शुद्ध भक्त का संग करेंगे, उनका सहवास करेंगे और उनका वाणी सुनेंगे। जैसे प्रभुपाद जी का हम संग कर रहे हैं, उनका किताब पढ़ के, तो हम इससे समझ सकते हैं और पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऋचा जी पढ़िए। हरे कृष्णा, आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करना है। हाँ, यस। भगवत गीता में अर्जुन भगवान के विषय में कृष्ण भगवान के होठों से ही सुन रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने परमेश्वर को समझने की विधि नम्रता से सुनने का उदाहरण उपस्थित किया है। हमारे लिए यही योग्य है कि हम भगवत गीता को अर्जुन से या उनके उपयुक्त प्रतिनिधि दैनिक जीवन में करना अनिवार्य है। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान, आप अजित हैं, परंतु इस विधि से सुनने की विधि से आप जीत लिए गए हैं। भगवान अजित हैं, परंतु वे उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक तर्क वितर्क करने छोड़ दिए हैं और योग्य व्यक्ति से सुन रहे हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान पाने के दो मार्ग हैं, आरोह मार्ग या चढ़ती हुई विधि और अवरोह मार्ग यानी उतरती हुई विधि। चढ़ती हुई विधि में कोई अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से ही प्रगति करता है। इसमें कोई इस प्रकार सोचता है कि मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की चिंता नहीं करूंगा, मैं ज्ञान की प्राप्ति ध्यान से या विचारों से पा लूंगा इत्यादि। इस प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। दूसरी विधि में ज्ञान पहुंचे हुए ऋषियों या मुनियों से स्वीकार करना है। ब्रह्म संहिता कहती है कि यदि कोई चढ़ती हुई विधि में हवा या मन की गति से करोड़ों वर्ष चले तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकेगा। उसके लिए यह विषय सदैव समझने में कठिन और अचिंत्य रहेगा। परंतु यह विषय भगवत गीता में दिया गया है अनन्य चेता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नम्रता के साथ भक्ति के मार्ग में बिना हटे उनका स्मरण करो। जो इस प्रकार का भजन करता है तस्याहम सुलभः, मैं बहुत सरलता से पाया जा सकता हूँ।
यह विधि है। यदि कोई दिन में 24 घंटे कृष्ण भगवान के लिए कार्य करता है तो कृष्ण भगवान उसे भूल नहीं सकते हैं। नम्र होकर ही वह भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैसे हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो। क्या वह नौकरों की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं क्योंकि हम उन्हें देखना चाहते हैं? यह नम्रता की विधि नहीं है। हमें उन्हें प्रेम और सेवा से आने के लिए आभारित करना होगा। बस 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 ठीक। तो वही जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, हाँ, भगवान अजित। तो अजित भगवान जित कैसे हो सकते हैं? जब अर्जुन के तरीके से, हाँ, अर्जुन ने भगवान का मुखारविंद से भगवत गीता का वाणी सुना था, बहुत विनम्रता से अर्जुन ने भगवान से, दूसरे अध्याय में बताते हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपको गुरु मानता हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, और मैं विनम्रता से जो है आपका आश्रय लेता हूं, मुझे बताइए, समझाइए। तो ये इस तरीके का जो शरणागत भावना जो है भक्ति के लिए बहुत जो है आवश्यक है। हम एक तरीके का जो चैलेंजिंग मूड नहीं होना है, हाँ मुझे सब कुछ पता है, आप बताओ, ऐसा नहीं, ठीक है। तो भक्ति मार्ग में विनम्रता बहुत अच्छा जो है, एक बहुत बड़ा एक गुण है जो हमें उसका कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो यही बात बाद में भगवान गीता में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के समक्ष जो है हमें विनम्रता से, सेवा भाव से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है, और तभी गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब भक्त भगवान के प्रति, गुरु के प्रति प्रार्थना करेंगे, तो भगवान और गुरु उनके प्रति बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब हम गुरु और कृष्ण के प्रति जो है विनम्रता से अपने आप को जब अपना पात्र निभाते हैं, और तो गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और हमें कृपा देते हैं, ठीक है। तो जो भगवान अजित है और शुद्ध भक्त का कृपा इतना आसान नहीं है, वो भी जो है उनका कृपा पात्र हम बन सकते हैं जब हमारा जो एटीट्यूड जो है बदलना है। अभी भौतिक संसार में हमारा एटीट्यूड क्या है? मैं सब कुछ जानता हूं, अहंकार, अहंकार का जो एटीट्यूड है, अहंकार के एटीट्यूड से जो है सभी लोग अपना जीवन चला रहे हैं, है ना। मैं जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मेरे से बड़ा आदमी कोई नहीं है, इस तरीके का भावना, ये भावना हमारा भौतिक संसार का सबसे जो है मूल कारण है। इसको बोलते हैं लॉर्डिंग टेंडेंसी। जब हम समझेंगे कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बस छोटा सा एक कण हूं, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, मैं सबसे जो है, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा कोई जो है आई डोंट हैव एनी स्टैंडिंग, इस तरीके का जो भावना जब आएगा, वास्तव में ये हमारा स्थिति है, फिर भी हम बड़े बड़े अपने बारे में सोचते हैं, इसको बोलते हैं अहंकार, प्राइड। बहुत गर्व हो जाता है अपने आप, मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने वो जानता हूँ, मैं वो करना, ये सब जो है कुछ नहीं है, ये गर्व जो है, अहंकार, अहंकार हमको जो है एक तरीके का पागल बना दिया है। अहंकार मत्त होया, मत्त हो गए, मत्त यानी कि इंटॉक्सिकेट हो गया हमारा माइंड, ये सब छोड़ना है। तो हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्म संहिता एक एक जो है शास्त्र है, जहाँ पे दो तरीके के ज्ञान अर्जन करने का मार्ग बताते हैं। एक को वो क्या बोलते हैं? आरोह, आरोह पंथ और अवरोह। अवरोह। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, दो ये पॉइंट समझना है हमको। आरोह पंथ में क्या होता है ऋचा जी? आरोह पंथ में क्या करते हैं? आइडिया नहीं। आरोह में हम खुद लर्निंग करते हैं कि हाँ, अपने आप रिसर्च करना चाहते हैं, अपने आप समझना चाहते हैं सब कुछ। हाँ, मैं अपने आप जाके, जैसे आप कहीं नया जगह जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं ढूंढ लूंगा, कर लूंगा, आपके पास कुछ नहीं है, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं है, अपने आप ढूंढ लेंगे, भटकते भटकते ढूंढ लेंगे, ऐसा सोचा है। इसको बोलते हैं आरोह, यानी कि मैं जो सत्य है मैं अपने आप ढूंढ लूंगा, इसको बोलते हैं आरोह पंथ। मुझे कुछ जो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है,
भगवान कौन है मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। मैं कुछ ध्यान कर लूंगा, कुछ अपने आप का जो है कुछ कल्पना कर लूंगा, स्पेकुलेशन कर लूंगा और भगवान का समझ लूंगा। इसको बोलते हैं आरोह पंथ, यानी कि कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं ही अथॉरिटी हूँ, जो मैं समझता हूँ वो ठीक है। इसको बोलते हैं आरोह पंथ, असेंडिंग प्रोसेस। अभी आजकल के समय में जो साइंटिस्ट कर रहे हैं और सभी तरीके के लोग जो करते हैं, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ मैं समझ लूंगा, आई विल फिगर आउट। ये जो भावना है वो ठीक नहीं है। और दूसरा मार्ग है अवरोह पंथ। ये जो है भक्ति मार्ग है, जहां पे हम ज्ञान स्वीकार करते हैं, हम अथॉरिटी को मानते हैं। हाँ? तो जैसे स्कूल में एक बच्चा अपने आप जो है सोचेगा कि नहीं, मैं स्कूल टीचर का कुछ बात नहीं सुनना है, मुझे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना, अपने आप मैं समझ लूंगा। ज्योग्राफी जो लेसन है, मैं जो है ये अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अपने आप समझ लूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझ नहीं पाएंगे आप। जब तक टीचर आपको समझाएंगे और टेक्स्ट बुक का जो ज्ञान है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नॉलेज लिमिटेड है। हमें हमें कुछ समझ में नहीं आता है एक्चुअली वास्तव में, है ना। फिर भी हम अहंकार गर्व, ऐसे ऐसे नहीं दिखाना कि मैं कर लूंगा अपना, मैं हो जाएगा, ऐसे बात जो है ये गलत है, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो जब तक हम ये जो ज्ञान, विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमें परंपरा में लेना है। परंपरा यानी कि गुरु शिष्य परंपरा, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, अपने नारद मुनि ने व्यास मुनि को ज्ञान दिया, इसलिए कैसे ये इसको परंपरा बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। इस परंपरा में प्रभुपाद जी आते हैं। प्रभुपाद जी ने ज्ञान अपने गुरु महाराज से लिया है, ठीक है। और उनके गुरु महाराज ने उनके गुरु महाराज से, इस तरीके से ज्ञान परंपरा में आ रहा है। तो ये ज्ञान जो है वास्तव ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है। जितना हम अपने तरीके से ढूंढते जाएंगे, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगा और वो पूरा ज्ञान नहीं होगा, वो अपरिपूर्ण ज्ञान रहेगा, इम्परफेक्ट नॉलेज रहेगा वो, है ना। तो इस तरीके से तो भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट बताते हैं। हमने इसके बारे में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त करने का तरीका भगवान स्वयं बोलते हैं, जब उनको अनन्य चेता सततम, विदाउट डिविएशन, है ना, जब हम भक्ति में लग जाएंगे विनम्रता से, तो क्या होगा, बहुत आसानी से भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन हमने भगवान से सुना है, तो इस तरीके से हमें उसको फॉलो करना है। ऐसे नहीं अब भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो अपने तरीके से जो है स्पेकुलेशन करेंगे तो कुछ मिलेंगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का बात बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान का देखने की कोशिश नहीं कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए ताकि भगवान आपको देख पाए। वेरी नाइस वंडरफुल स्टेटमेंट। यानी कि हमें विनम्रता से भगवत भक्तों का सेवा करके उनके मार्ग में चलने से क्या है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हमने अभी समझा हुआ है कि भगवान वास्तव में उनको प्राप्त करना आसान नहीं है, वो अजीता है। फिर भी भक्ति मार्ग के माध्यम से, शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, उनके मार्ग में चलेंगे तो, ठीक है। तो ये हमने समझा। और दो तरीके के जो विधि विधान है, एक तो आरोह पंथ, अवरोह। आरोह पंथ जो है उसमें कोई हमें लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, हमेशा अधूरा रहेगा। एक ज्ञानी का मार्ग ऐसा है, ज्ञानी जो है हम खुद भगवान को ढूंढ लेंगे, हम कुछ स्पेकुलेशन कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, इस तरीके से वो भटकते जाते हैं, बहुत जो है कठिन मार्ग में चले जाते हैं। और अवरोह पंथ में क्या है, अथॉरिटी से ज्ञान आ रहा है, हम स्वीकार कर लेंगे बस। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं एक और जगह पे, एक छोटा बच्चा, आपके जो घर पे बच्चा जो रहता है, वो आपसे सुना होगा ये टेबल है, तो वो कोई बोलेगा क्या है, वो टेबल है, क्योंकि उसने अपने माता पिता से सुना है, उसका ज्ञान परफेक्ट है। वो परफेक्ट नहीं है, बच्चा परफेक्ट नहीं है, उसका ज्ञान परफेक्ट है, क्योंकि उसने अपने अथॉरिटी माता पिता से सुना है ये बात। तो जब हम ठीक सोर्स से, प्रॉपर सोर्स अथॉरिटी से सुन लेंगे ज्ञान, तो हम इम्परफेक्ट होंगे, अलग बात है,
हमारा ज्ञान परफेक्ट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यह हमारा आगे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट, विनायक जी बताइए आप। The proper process of approaching Krishna was given to humanity by Lord Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami. First disciple appreciated it. Rupa Goswami was a minister in the Mohammedan government, but he left the government to become a disciple of Chaitanya Mahaprabhu. When he first went to see the Lord, Rupa Goswami approached him with the following verse. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Name Gaura Namne Gaur Tuse Nama. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord, Shri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatar, even Krishna himself, because he is bestowing freely what no one else has ever given, pure love of Krishna. Rupa Goswami called Chaitanya Mahaprabhu the most munificent, the most charitable personality, because he was offering the most precious thing of all, very cheaply, love of God. We all want Krishna and are all hankering after him. Krishna is the most attractive, the most beautiful, the most opulent, the most powerful, and the most learned. That is the object of our hankering. We are hankering after the beautiful, the powerful, the learned, the wealthy. Krishna is the reservoir of all of this, so we need only turn our attention toward him, and we will get everything. Everything, whatever we want, whatever is our heart's desire, will be fulfilled by this process of Krishna consciousness. Okay, enough. So, Prabhupada ji is giving example of great devotees. Rupa Goswami. Rupa Goswami is our example. ठीक है? So, one of the 6 Goswamis is Rupa Goswami. वृंदावन के जो 6 गोस्वामी बोलते हैं, उनमें से सबसे जो है इंपॉर्टेंट गोस्वामी है रूप गोस्वामी। वो चैतन्य महाप्रभु के पास जब गए, उन्होंने क्या प्रार्थना किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेयर हमें सीखना है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तो चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करते हुए चैतन्य रूप गोस्वामी बोलते हैं कि नमो महावदन्याय, आप बहुत बड़े उदारी अवतार हो चैतन्य महाप्रभु। वदान्याय, महावदन्याय मीन्स लाइक वेरी चैरिटेबल, वेरी मुनिफिशिएंट, वेरी मैग्नानिमस। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। यू आर गिविंग द हाईएस्ट बेनेडिक्शन और द बेनिफिट ऑफ कृष्ण प्रेम टू एवरीबडी। आप स्वयं कृष्णा हो। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण ही है। वो भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, ओ कृष्ण चैतन्य, उनका नाम जो है कृष्ण चैतन्य। इस तरीके से कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत्विषे नमः। गौरत्विषे यानी कि उनका त्वचा जो है गौरवर्ण। कृष्णा का जो त्वचा का वर्ण है एक्चुअली श्याम वर्ण। तो उन्होंने गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने गौर का जो है गौरा यानी कि गौरा गोल्डन कलर, येलो कलर, ये जो है उनका शरीर उन्होंने धारण किया। जैसे राधा रानी का शरीर का कलर उन्होंने स्वीकार किया। तो इस तरीके से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि आप जो है सबसे बड़ा उदारी अवतार है। यूर वेरी मैग्नानिमस इनकारनेशन। आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं और सबको जो है आप आसानी से, सुलभ तरीके से आप भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होना इतना आसान बात नहीं है। बड़े बड़े योगी, संत, ज्ञानी तपस्या करते हैं लाखों लाख जन्म जन्म तक भगवान का दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे भगवान स्वयं आके कृष्ण प्रेम को सबको बांट रहे हैं फ्रीली।
जैसे कोई आदमी जो है रास्ते में खड़े होकर सबको 1-1 करोड़ बांट रहा है। 1 करोड़ तो बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, भगवान का कृष्ण प्रेम तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि भगवान के जो गुण क्या है बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब भगवान कृष्ण चाहते हैं, और हम सब उनका जो है सभी गुण जो है वो हर व्यक्ति में देखना चाहते हैं। वी आर ऑल हैंकरिंग आफ्टर हिम एंड हिज वंडरफुल क्वालिटीज इन एवरीबडी। भगवान के 6 गुण होते हैं, 6 जो है ऐश्वर्य होते हैं। जहाँ पे समझ जा रहे हैं, कृष्णा इज मोस्ट अट्रैक्टिव, वो जो है वो सुंदर है, और इज मोस्ट ऑपुलेंट, इज मोस्ट ब्यूटीफुल, इज मोस्ट ऑपुलेंट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट लर्नड एंड मोस्ट अनाउंस्ड। इसको ऐश्वर्य बोलते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नम भग इतिंगल। सबसे पूरा संसार का संपत्ति जो है भगवान के पास है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्रस्य। और सबसे जो है वीर यानी कि स्ट्रेंथ, पावर जो है भगवान के पास है। इज द मोस्ट पावरफुल ना, कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट वेल्दिएस्ट पर्सन, और कृष्णा इज द मोस्ट फेमस। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं अट्रैक्टिव यानी कि वेरी फेमस, मोस्ट फेमस पर्सन। ऐश्वर्य समग्र से वीर से यशस्श्रिय, श्रिय यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड इज मोस्ट लर्नड। भगवान का ज्ञान, गीता का ज्ञान इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, वो ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। इतना श्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने दिया है। एंड ही इज अ बिग ही इज अ मोस्ट रिनाउंस्ड पर्सन। उनका वैराग्य जो है, भावना इतना श्रेष्ठ है कि पूरा संसार को उन्होंने सृष्टि किया, फिर भी वहां पे रहते नहीं है, अपने धाम में रहते हैं। जैसे आपने अपने घर बनाया तो आप वहां पे रहना चाहते हैं, घर से घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान ऐसा है कि बस बना के आपको जोड़ दे दिया, छोड़ दिया। इतना बड़ा जो है वो त्यागी है। सो दिस इज कृष्णास ऑपुलेंसेस। इनका ऐश्वर्य, इनका जो है ये षडैश्वर्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम जो व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत वैराग्य में है, उनका पीछे पड़े रहते हैं, है ना। और भगवान इन सब का जो है वो सागर है, प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। तो जब हम भगवान की तरफ अपना ध्यान मुड़ेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमारा मन का पूरा जो है इच्छाएं पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हम इसी चीजों को अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं, है ना। तो आत्मा जो है वास्तव में अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहा है। मुझे नाम चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। जो मिलेगा ना उससे हम संतुष्ट नहीं है, फिर से ढूंढ रहे, फिर से ढूंढ रहे। तो भगवान जो है इन सभी चीजों का सागर है, विशाल सागर है। उनका आश्रय आ जाएगा, आश्रय में आ जाएंगे तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये ज्ञान जो है हमें शुद्ध भक्त रूप गोस्वामी दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना है, भगवान कृष्ण का आश्रय लेना है, तो हमारा जीवन का सार्थकता हो जाएगा। इसको बोलते हैं अवरोह पंथ, है ना। हम कुछ अपने तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल ज्ञान जो रूप गोस्वामी ने दिया है उसको फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शिवा। मामुपेते पुनर्जन्मा दुखालमा अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसाधि सिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी भी वापस नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा स्थान बताया है, फिर भी हम इस सुखदायी कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति से इस संसार को सुखी बनाना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हम यह भी नहीं जानना चाहते हैं कि दुख है क्या। जैसा कि पहले बताया है कि दुख जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के हैं, और चूंकि हम इसे हल नहीं कर पाते, हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाले इन समस्याओं का हल करने का कोई शक्ति नहीं है। इसके विपरीत
वे हमारे ध्यान को अंतरिक्ष यान या अणु बम बनाने की ओर ले जाते हैं। इन समस्याओं का हल यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर देता है तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर वापसी नहीं आना होता है। हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह जगह दुखों से पूर्ण है। इसको समझने के लिए कुछ विकसित चेतना चाहिए। कुत्ते, बिल्लियां और शुक्र समझ नहीं सकते, वे दुख पा रहे हैं। मनुष्य के तर्क संगत पशु कहा गया है, परंतु उसकी इस विचारशीलता का उपयोग दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने का हल ढूंढने के बजाय पाशविक मोनावृत्ति को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जो उनके पास पहुंच जाता है वह दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेगा। उनके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है। वो जीवात्मा को बुद्धि जीवन से छुटकारा दिलाती है। ठीक है, ओके। तो अब तक हमने समझा हुआ है कि भगवान भक्ति से ही प्राप्त होंगे। हमें भक्तों के मार्ग में चलना, जिसको अवरोह पंथ बोलते हैं। और रूप गोस्वामी का जो प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु से हमने समझा। और अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस तरीके से जब हम भक्ति में अपने आप को जो है लगा लेते हैं और जीवन पूरा भक्ति करते हुए शरीर त्यागते हैं तो हम भगवत धाम अवश्य जाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उधर जाने से क्या फायदा होगा? हाँ, हम जो है मृत्यु प्राप्त करके दूसरे लोक में चले जाएंगे ना, स्वर्ग लोक जाएंगे, ब्रह्म लोक जाएंगे, उससे क्या होगा? तो प्रभुपाद जी इधर समझा रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तो वहां पे इस भौतिक संसार के जो दुख है, अशाश्वत तरीके का जो लक्षण है वो नहीं है। भौतिक संसार को दुखालयम अशाश्वतम बताया गया है। ये सर्टिफिकेट दे दिया चैतन्य भगवान ने इस भौतिक संसार को। दुख से भरा हुआ लोक। दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का दुख। और 3 तरीके के दुख हैं जो हर समय, हर क्षण, हर व्यक्ति हम महसूस करते जाते हैं। एक तो हमारा शरीर और मन का दुख, उसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। और जो दुख दूसरे जीवात्माओं से आता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। और जो दुख हम देवताओं से हमेशा महसूस करते रहते हैं, जैसे बहुत ठंड है, अभी हमें शॉल पहनना है, स्वेटर पहनना है, गर्मी हो जाएगा एसी ऑन करना है, इसको बोलते हैं अधिदैविक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 तरीके के क्लेश, दुख हमेशा हम झेलते रहते हैं, हर क्षण, हर समय। तो इसलिए इसको दुखालय बोलते हैं। और इस ठीक है, थोड़ा बहुत दुख होगा, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, आप परमानेंट नहीं रह पाएंगे। ये अशाश्वत लोक है, दुखालय अशाश्वत। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम कितने भी जो है अपने विज्ञान तंत्र ज्ञान से यहाँ पे कुछ भी करके जो है यहाँ पे सुख सुविधा से रहने का कोशिश करें तो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का चक्कर में सब बंधे हुए हैं। ठीक है, तो हमें वहां जाना है जहां पे ये जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम समझा हुआ था, आध्यात्मिक लोक, भौतिक लोक, अंतर क्या है? भौतिक लोक में जन्म मृत्यु का चक्कर रिपीटेशन रहता है, और आध्यात्मिक लोक में जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है, शाश्वत जीवन है, सच्चिदानंद अस्तित्व है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब समझने के लिए थोड़ा बोरा हमारा चेतना जो है विकसित होना है, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में एक बात बताते हैं, आहार निद्र भय मैथुनम सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम। पशु और नर यानी कि जानवर और मनुष्य में दोनों समान कार्यबोध हैं। जैसे आहार खाने का बात हो, निद्रा सोने का बात हो, आहार निद्रा भय शरीर का रक्षा करने का बात हो, और मैथुन यानी कि इंद्रिय भोग करने का बात हो। ये 4 बातें हैं, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ये 4 चीजें जो है मनुष्य और पशु के बीच में समान है, यानी कि दोनों ही अनुभव कर रहे हैं। फिर भी शास्त्र में आगे बताते हैं
मनुष्य में एक अलग से एक सुविधा है, क्या है? धर्मो हि तेषो अधिको विशेष। Man has a special ability, developed intelligence of understanding about dharma. तो ये पशु में नहीं है, प्राणी में नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान जीवी बोला जाता है। वो मनुष्य होने के बाद भी वो पशु जैसे अपना जीवन बिताता जाएगा, तो पशु और मनुष्य के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो वास्तव में भगवान हमें यही समझा रहे हैं, शुद्ध भक्तों का मार्ग में चलकर हमें भगवत धाम जाने का पूरा तैयारी करना है, क्योंकि भगवत धाम में इस तरीके का भौतिक संसार का दुख का कोई बात ही नहीं है। वो शाश्वत जगत है, सच्चिदानंद अस्तित्व है। इस तरीके का जो ज्ञान हम ठीक से समझेंगे नहीं तो भटकते रहेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम पास नहीं करना चाहते हैं, बस उसी क्लास में बैठे रहेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम पास क्यों करना है। वो सोचते हैं कि बस आराम है, कितना दिन ऐसे आराम में रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। फिर से दुख का अनुभव आपको करना पड़ेगा। ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो भौतिक संसार में जो है हमें कुछ बीमारी हो जाए तो कितना दुख होता है, और सबसे बड़ा दुख है जब हमें इस शरीर से निकल के जाना पड़ेगा, मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। इसलिए जब जैसे ही मृत्यु होता है किसी का घर पे, कितना शोक करते हैं कि वो हमारे पास ये जो व्यक्ति था इतना दिन अभी नहीं है, चला गया। देखिए, लेकिन मृत्यु कोई भी जो चाहता नहीं कि मुझे मृत्यु हो, फिर भी मृत्यु का अनुभव कर रहे हैं। ये बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। रेणुका जी आप पढ़िए, please read one of the differences between. One of the differences between Krishna and an ordinary being is that an ordinary entity can be in only one place at a time, but Krishna can be everywhere in the universe and yet also in his own abode simultaneously. Krishna's abode in the transcendental kingdom is called Goloka Vrindavan. This Vrindavan in India is that same Vrindavan descended on this earth. When Krishna descends himself by his own internal potency, his dham or abode also descends. In other words, when Krishna descends on this earth, he manifests himself in that particular land. Despite this, Krishna's abode remains eternally in the transcendental sphere in the Vaikunthas. In this verse, Krishna proclaims that one who comes to his abode in the Vaikuntha never has to take birth again in the material world. Such a person is called a Mahatma. The word Mahatma is generally heard in the West in connection with Mahatma Gandhi, but we should understand that Mahatma is not the title of a politician. Rather, Mahatma refers to the first-class Krishna consciousness man who is eligible to enter into the abode of Krishna. The Mahatma's perfection is this: to utilize the human form of life and the resources of nature to extricate himself from the cycle of birth and death. An intelligent person knows that he does not want miseries, but they are inflicted upon him by force. As stated before, we are already in a miserable condition due to this mind, body, natural disturbances on other living entities. There is always some kind of misery inflicted upon us. This material world is meant for misery. Unless the misery is there, we cannot come to Krishna consciousness. Miseries are actually an impetus and help to elevate us to Krishna consciousness. An intelligent man questions why these miseries are inflicted on him by force. However, modern civilization's attitude is, let me suffer, let me cover it by some toxication, that's all. But as soon as the intoxication is over, the miseries return. It is not possible to make a solution to the miseries of life by artificial intoxication. The solution is made by Krishna consciousness. One may. Okay, so what did you understand from this? It is the continuation of the previous paragraphs. They have talked about the difference between Krishna as an ordinary being, and not Krishna as ordinary being. Krishna is present everywhere, and an ordinary person can be present only in one place. At a time, right? Krishna is present. He's omnipotent and he's like everywhere. And simultaneously, he can be everywhere.
नहीं, दैट इज कृष्णा। भगवान जो है हर समय अजय। हर जगह पे एक ही समय में रह सकते हैं, ये भगवान का एक उनका लक्षण And है। they're also saying that when he came on earth, the whichever part of India he landed, like Vrindavan is the place, so he manifested his presence there, and his own abode is Golok Vrindavan, Vaikunt जिसे हम कहते हैं. He's also talking about Mahatma, the actual meaning of Mahatma. So Mahatma Gandhi, the word he got is not because of he is a Mahatma in the process the way Gita has expressed. So Mahatma, what is the meaning of Mahatma? Mahatma is the stage of that perfection, that consciousness that you reach when you come out of that cycle of birth and rebirth, and you are in Vaikunt, so you're not going to take a birth again. So that is the stage where when you become a Mahatma. First class Krishna conscious devotee. Yes, first class Krishna Who conscious. is eligible to enter into abode of Krishna. He is called Mahatma. Very important definition. महात्मा जो वर्ड है आजकल में पॉलिटिशियंस एंड somebody महात्मा महात्मा बोल रहे हैं। महात्मा का ऐसा नहीं कि वो एक टाइटल है। महात्मा इज ए क्वालिफिकेशन which a pure devotee achieves because of his being first class nice Krishna conscious devotee, and he is eligible to enter into the Krishna's abode, Krishna's planet. ठीक है? Okay, then Any intelligent person would say that I don't want miseries in my life. I want to live a good life. I don't want any disturbances. But there's always misery which is inflicted upon us, and the material world is a place for misery where you will. So we cannot come out of this misery unless we are into Krishna consciousness. So no matter what we do, we will come back into the misery in spite of what we do, but unless we go into Krishna consciousness, our miseries will not reduce. And then the person, they are saying that an intelligent person questions also that okay, let me suffer, I can intoxicate my body, I can start drinking, I can start smoking, so I will get pleasure temporarily, but again I will come back into misery in spite of the intoxication whatever I'm going through. So unless you go into Krishna consciousness, you get intoxicated with Krishna consciousness, so that you come out of that misery permanently. no, see, intelligent person will not think like this. A dull man only will think like this. Oh, what is this Krishna consciousness? Miseries. Anyway, let me suffer little and forget the miseries by कुछ नशा करके भूल जाएंगे ऐसे सोचते हैं. So that is not the solution, na? Right? So I just now told you, the misery is due to mind, body. It's called Adhyatmika. Misery is due to other living entities. That is Adi Bhautika. Misery is due to natural disturbance. प्राकृतिक विकोप जो होता है, दुख, उसको बोलते हैं अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक. याद करना है आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में. इसलिए बोल रहे हैं. 3 तरीके के जो क्लेश होते हैं, दुख होते हैं. 3 types of threefold miseries they are called. तापत्रय, आध्यात्मिक. What is it called? The paper will be in Hindi or English? Both. Any language, whatever you want. Okay, so English is not mentioned. Nothing is Very mentioned. clearly mentioned now in this paragraph what you read, the paragraph what you just now read. Okay. As stated before, we are always in a miserable condition due to this mind, body, natural disturbance, other entities. It is not specifically, emphatically mentioned the way I am telling. Proper as mentioned. I am just giving you the Sanskrit technical words for this. Okay. So this will be repeatedly used again and again. Tapatraya, threefold miseries. 3 तरीके के जो दुख क्लेश जो होते हैं उसको बोलते हैं तापत्रय. आध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविक. आध्यात्मिक यानी कि मन और शरीर के संबंध में जो क्लेश अनुभव करते हैं, जैसे सम डिजीज, सम टेंशन, एंजाइटी, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक. अधिभौतिका, मिजरीज फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज. ठीक है. एंड अधिदैविका मीन्स मिजरीज फ्रॉम नेचुरल डिस्टर्बेंस. Very important. So
हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में इस मिजरीज हमेशा हमें अनुभव होता रहेगा। ठीक है। सो मिजरीज आने पर हम सोचेंगे कि मिजरीज इतना क्यों हो रहा है मुझे। प्रभुपाद जी बोलते हैं मिजरीज आर एक्चुअली इम्पेटस, आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस मिजरीज, and then he will turn towards Krishna consciousness, right? So whereas the modern people attitude is, oh, let me suffer a little, let me forget the miseries by intoxicating myself or getting into some other habit, bad habit. That is not going to solve the problem. It's like a rabbit, एक खरगोश जो है जब बहुत डेंजर हो जाता है तो अपने आंख बंद कर देता है। तरीके से हम मिजरीज के लिए अपने आंखों को बंद कर लिया प्रॉब्लम के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं निकलेंगे, प्रॉब्लम तो रहेंगे। ये बात ठीक है, फाइन। ओके, सो विनायक, ऋचा जी नहीं है, ऋचा जी नहीं है। हाँ, इज देयर? she's there. हाँ, उनको But पढ़ने, मैं point out, हाँ, जी प्रभु, उनको पढ़ने बोलिए। यहाँ से ना, बुद्धिमान one में point out. बुद्धिमान व्यक्ति जानता है ये नहीं, आगे। इस संसार में, इस विश्व में, आप पढ़ो, मैं देखती हूँ उसमें। One में point out. अरे मेरा हिंदी आप पढ़ो ना। प्रभु जी वो अभी बाहर गए थे, ठीक है, तो मैं रीड कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। One may point out that although the devotees of Krishna are trying to enter Krishna's planet, everyone else is interested in going to the moon. Then going to the moon also perfection. The tendency to travel to other planets is always present in the living entity. One name for the living entity is Sarvagata, which means one who wants to travel everywhere. Travel is part of nature of the living entity. The desire to go to the moon is not a new thing. The yogis also are interested in entering the higher planets. But in Bhagavad Gita, Krishna points out that this will not be of any help. Abrahma Bhuvanal Loka पुनरावर्ती नो अर्जुन मामु पेत्यक्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. The universe is divided into higher, middle, and lower planetary systems. The Earth is considered to be member of the middle planetary system. Krishna points out that even if one enters into the highest planet of all, called Brahmaloka, there is still repetition of birth and death. Other planets in the universe are full of living entities. We do not think that we are here and that all other planets are vacant. From experience, we can see that no place on Earth is vacant of living entities. If we dig deep down into Earth, we find worms. If we go deep into water, we find aquatics. If we go into the sky, we find so many birds. How it is possible to conclude that other planets have no living entities? But Krishna points out that even if we enter into those planets where great demigods reside, we will still be subjected to death. Again, Krishna repeats that upon reaching his planet, one need not take birth again. We should be very serious about attaining our eternal life full of bliss and knowledge. We have forgotten that this is actually our aim of life, our real self-interest. Why have we forgotten? We have simply been entrapped by the material glitter, by skyscrapers, big factories, and political play. Although we know that however big we build skyscrapers, we will not be able to live here indefinitely. We should not spoil our energy in building mighty industries and cities to further entrap ourselves in material nature. Rather, our energy should be used to develop Krishna consciousness. In order to attain a spiritual body, whereby we may enter into Krishna's planet, Krishna consciousness is not a religious formula.
or our spiritual recreation. It is the most important part of living entity. Okay. Okay. So, what did you understand? Going to moon planet is better, no? Going to moon planet is better? Yes. Yes. No. Oh. No. Huh? No, Prabhu. Why? Like everybody wants to go to the moon, but moon mein there is no life. There is life, but you can't see. Why going to moon is not recommended? Moon जाने के लिए जो है मना क्यों कर रहे हैं? चंद्र ग्रह, चंद्र. प्रभुपाद बोलते हैं ना, अदर प्लैनेट्स आर आल्सो फुल ऑफ लिविंग एंटिटीज. राइट. पूरा ग्रह में तो भी बहुत सारे जीवात्मा है. वो हमारे जो अनुभव में नहीं है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ वहां नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है. जैसे पानी में इतने सारे एक्वाटिक्स होते हैं, है ना? तो एवरी लिविंग एंटिटी इन डिफरेंट सिचुएशन हैज डिफरेंट बॉडी. उस तरीके से जीवात्मा है. जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आप जमीन के अंदर जाएंगे तो इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं. पानी में जाएंगे इतने सारा एक्वाटिक्स हैं. आसमान में जाएंगे इतने सारा पंछियां हैं. तो हर जगह पे लोग जीवात्मा हैं. इसको गीता में भगवान बोलते हैं सर्वगत. यानी कि हर जीवात्मा अलग अलग तरीके में भटक रहा है और हर जगह पे है. तो बताइए, मून क्यों नहीं जाना है हमको? वो भी प्रभु जी हमारे लिए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होगा, जैसे पृथ्वी है. तो क्या हुआ? अच्छा है ना, बेटर है ना? नहीं तो मतलब पाताल लोक, ये ना ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक जन्म मृत्यु का चक्कर है. हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हमारे लिए तो सेम ही है. हमारे सेम है. अभी समझ में आया तो सेम है. हमारे लिए सेम होगा. इनको समझ में नहीं आएगा ना, वो सोचेंगे ओ अच्छा है. जैसे लोग जाते हैं, चाहते हैं कि हम फॉरेन जाएं, वहाँ पे सेटल हो जाएं. अच्छा है ना, वहां पे भी आप मरेंगे. वहां पे भी आपको जन्म मृत्यु का चक्कर होगा. ये बात है. तो कहीं पे भी जाएंगे तो भगवान ही, इसलिए गीता का एक श्लोक बोल रहे हैं प्रभुपाद जी इधर, आप ब्रह्म भुवनाल लोक. ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक पाताल लोक तक क्या है? पुनरावृत्ति. यानी कि सभी जगह पे जन्म मृत्यु का पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन. तो ये जो दुख है, जन्म मृत्यु का दुख, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह पे है. तो ये बात हमें समझना है. ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है ऊपर नीचे जाने का. तो प्रभुपाद जी यही भी बोल रहे हैं ना, आजकल समय में हम बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े वो फैक्ट्री कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ बस जीवन अंत होते ही सब कुछ खत्म. तो हमारा एनर्जी कहाँ जाना है? हमारा एनर्जी हमें भक्ति करने में जाना है, आध्यात्मिक मार्ग में चलना है, तभी वो ठीक से सदुपयोग होगा. तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बोलते हैं. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए रिलीजियस फॉर्मूला और सम स्पिरिचुअल रिक्रिएशन. क्या मीनिंग है इसका? वाह, कृष्ण भावनामृत जो है कोई धार्मिक सूत्र नहीं है. कोई हमारा जो है बस आराम करने का, आध्यात्मिक तरीके से आराम करने का बात नहीं है. रिक्रिएशन नहीं है. इसका मीनिंग क्या है? ये जरूरी है प्रभु को, आवश्यक है, हमें बहुत आवश्यक है. ऐसा नहीं कि हम टीवी देख लिया तो वो एंटरटेनमेंट हो जाता है, रिक्रिएशन है ना? कृष्णा कॉन्शियसनेस भी टाइम पास का बात नहीं है. ये हमारा जीवन के लिए आवश्यक है. नहीं करेंगे तो क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे. साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में घूमते रहेंगे. हाँ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट ए some sentimental or some recreation or some religious ritual. नहीं, वो आवश्यक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. ये बात हमें समझना है. तो हमें इस मृत्यु से, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, भौतिक संसार से बाहर निकलना है. इसलिए इस चैप्टर का मीनिंग, नेम क्या है? लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल प्लैनेट्स.
हाँ, ये हमारा कृष्णा भक्ति आचरण करना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आवश्यक चीज है। नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। नेक्स्ट विल ट्राई टू रीड 4th चैप्टर। मोस्टली जो है गुड़गांव में नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, आश्रय प्रोग्राम। ठीक है, डेट सब बताएंगे, मोस्टली फरवरी मिड में होगा। ठीक है, तब तक हम पूरा पढ़ लेंगे, और 2 चैप्टर है बस, और टेस्ट ले लेंगे, और गुड़गांव में अपीयरेंस हो जाएंगे उधर नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, You have to go to Gurgaon, Prabhuji? हाँ, यस यस यस, Okay. ठीक है ना, क्योंकि वृंदावन में इस टाइम थोड़ा लेट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, So that is हमारे level 2. This is अयोध्या का कार्यक्रम चल रहा है ना। हाँ, level 1. This is level 2. So now level 3. यस, लेवल 2 यू Next will, नेक्स्ट विल बी लेवल 3। so ये level सब 3 will happen at Gurgaon. That is what you're saying. नहीं नहीं, लेवल 2 है ये भी, ये अभी जो ले रहे हैं अभी, ये लेवल 2 है। तो फिर अभी गुड़गांव में क्या होगा? अभी तो एग्जाम खत्म होके लेवल 2 इज ओवर, राइट? नहीं, लेवल 2 का जो संकल्प लेना है आपको, ओके। हाँ, आपने अभी जो अभी टेस्ट लिखेंगे, यू राइट टू हाँ। राइट टेस्ट, तो हाँ। उसका जो दैट कंफर्मेशन दैट यस यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव कंप्लीटेड दिस लेवल 2, उसका एक संकल्प लेंगे। How we had level 1 at Vrindavan, same way हाँ, it same, same. okay. वो हमारा ही प्रोग्राम है, बस हम नोएडा में करते रहते हैं, गुड़गांव में करते हैं, तो आप गुड़गांव में पार्टिसिपेट कर लीजिए इस टाइम। ठीक है, वृंदावन का थोड़ा लेट होने वाला है, इसलिए आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। Yes. ठीक है, क्योंकि वो गुड़गांव में कुछ दूसरे भक्त भी रहेंगे, अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करेंगे, 3rd लेवल का। 3rd लेवल यानी कि 8 राउंड्स, 8 राउंड चैंटिंग एंड 2 बुक्स आर देयर 3rd लेवल में। ठीक है, तो वो बुक पढ़ना है इस तरीके से। नेक्स्ट 4th लेवल में 12 राउंड्स है, और 5th लेवल में 16 राउंड्स है। उस टाइम में भगवत गीता पढ़ना होगा। So total how many rounds are there? 6. 6 levels are there। Okay, 6 levels are there. 6th लेवल तक आने के बाद दीक्षा, उसके बाद इनिशिएशन होगा, सिस्टमैटिक स्टडी, Yes, yes. ताकि अब धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। एकदम जंप करेंगे फिर से नीचे गिरेंगे, ऐसा बात नहीं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टेबिलिटी होना है कि जो कि इतना ये छोटा बुक में कितने सारी चीजें समझने का है। हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए, सो एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशंस? प्रभुजी, the last point, हाँ, ये मून वाला क्लियर नहीं हुआ कि why it is not। रिसर्च ने बोला ना, मून भी एक मेटेरियल प्लेनेट है, वो मेटेरियल वर्ल्ड में ही है। तो मेटेरियल वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएंगे, क्या है, रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ होगा ना। बस खाली जो है थोड़ा लंबा समय आप जी सकते हैं उधर, एक दिन मरना ही है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक सभी लोग गए, सभी जो है मृत्यु लोक ही है। आप वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे सब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, आप अमेरिका जाएंगे तो हो आई विल बी फॉरएवर लाइक स्टेइंग देयर, नो, वहां पे भी मरना पड़ेगा आपको। मे बी फैसिलिटीज आर लिटिल बेटर देन इंडिया, दैट्स ऑल, है ना। बस आपको फैसिलिटीज ज्यादा अच्छा बोल के उधर आनंद मिलेगा हमेशा के लिए, नॉट पॉसिबल। ऐसे स्वर्ग लोक जाएंगे, मून इज कंसिडर्ड टू बी स्वर्ग लोक, हेवन, हेवन, where you have long duration of life, better facilities of life. So that is not the purpose of life, no. Purpose of life is to come out of this material world. प्रॉपर जो एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभी जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, पॉलिटिशियंस और वीआईपी जो जब कभी उनको जेल में डालते हैं तो उनको A क्लास प्रिजन में डालते हैं, A क्लास प्रिजन। वो एक रूम होता है, वहां पे टीवी होता है, एसी होता है, उनको न्यूज़पेपर आता रहता है, बस एक रूम में बंद रहते हैं वो। और C क्लास प्रिजन में क्या होता है, एक ऐसा एक जो है जहाँ पे डार्क रूम जो है पे फैन भी नहीं होगा, आपको जमीन में सोना पड़ेगा, ये C क्लास प्रिजन है। तो आपको C क्लास प्रिजन से A क्लास प्रिजन में आ गए तो आपको खुश होगा, दुख होगा। आफ्टर ऑल इज अ प्रिजन, A क्लास प्रिजन, B क्लास प्रिजन, C क्लास प्रिजन,
प्रिजन से बाहर निकला तभी आपको खुशी होना है। नहीं, मेरा प्रिजन का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया, अभी प्रिजन का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो गया, चलो अच्छा है अभी, दिस इज कॉल्ड फूलिशनेस। तो हम धरती पे रहेंगे, चंद्रलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, बस यही प्रॉब्लम है। खाली जो है थोड़ा फैसिलिटीज अच्छा रहेगा, बस अच्छा रहेगा, भूलना नहीं हमने अपने आप को। उधर पे इतना जो है फैसिलिटीज अच्छा रहेगा कि आप वास्तव में अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम है उधर। इसलिए देवता लोक में भी भागवत में बोलते हैं, देवता लोक के जो देवताएं भी वो चाहते हैं कि धरती पे आए, पृथ्वी पे आए, ताकि पृथ्वी में दुख का अनुभव होता है और भक्ति में आगे बढ़ने का थोड़ा प्रेरणा मिलता है। इम्पेटस, प्रभुपाद जी ने बोला, इम्पेटस, मिजरीज आर द इम्पेटस फॉर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, एलिवेटेड टू कृष्णा कॉन्शियस। दुखी नहीं है तो सब ठीक ठीक है, देन पीपल थिंक ओ दिस लाइफ इज वेरी नाइस, है ना, सब ठीक चल रहा है। दुख होगा तो ओ अच्छा प्रॉब्लम है, समझ में आएगा। तो ये सब धरती पर होगा, बाकी लोगों में ये संभव नहीं है। देखिए कितना फॉर्चुनेट है हम, वी आर बोर्न इन लैंड ऑफ इंडिया, इन अर्थ, ऑन अर्थ एट दिस टाइम व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए तो विल क्लोज नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा।